صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کمرہ عدالت کی خاموشی کو جج صاحب کی بھاری آواز نے توڑا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھ کر عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ وکٹم ثنا وہاب کو حسیب عالم پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کی ساکھ اور عزت کو نہ صرف نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ان کے کردار کا بھی تماشا لگانے اور جھوٹے ثبوت اور گواہوں کو پیش کر کے عدالت کو گمراہ کرنے کی صورت میں عدالت انہیں مجرم قرار دیتی ہے اور ان پر جرمانہ عائد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت حسیب عالم کو ہر الزام سے باعزت بری قرار دیتی ہے اور انہیں یہ حق دیتی ہے کہ وہ ثنا وہاب پر ہرجانے کا کیس کر سکتے ہیں یا پھر انہیں معاف کر سکتے ہیں۔ لفظ تھے کہ آب حیات۔ آنکھیں موندے اس نے گہری سانس عدالت کی تنگ ہوا میں خارج کی۔ حسیب عالم کے گھر والے اور اسی طرف دائیں جانب بیٹھے لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وکیل صاحب نے اس کے کٹہرے سے نکل جانے کے بعد حسیب عالم کو گلے لگایا۔ مبارک ہو شیر۔ تمام کارروائیوں کے بعد وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے۔ حسیب کے ساتھ ساتھ سب اس کو بھی مبارکباد دے رہے تھے۔ آخر کو حسیب کو جتانے کے پیچھے بڑا ہاتھ اسی کا تو تھا۔ مسز حسیب عالم، انامیتا حسیب عالم، ایڈوکیٹ انامیتا حسیب عالم۔ مگر وہ جانے کیوں خاموش سی تھی۔ آج میرے بیٹے کی جیت کی خوشی میں پارٹی ہوگی۔ یہ آواز مسز ناز عالم کی تھی، حسیب عالم کی ماں۔ جشن۔ انامیتا نے ہونٹوں کے کونوں کو زبردستی کھینچ کر کہا۔ میڈیا سے بچ کر وہ لوگ گاڑی تک پہنچے۔ گھر تک کا سفر جہاں گاڑی میں بیٹھا ہر شخص خوش تھا، وہاں انامیتا گہری سوچ میں غرق۔ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ حسیب نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ہر شے ساکن، وہ اس کا شدت سے دھڑکتا دل اور اس کی سست ہوتی سانسیں۔ حسیب، میں بتا نہیں سکتا انامیتا میں کتنا خوش ہوں۔ اس وقت کوئی بھی لفظ میری خوشی بیان کرنے سے بالاتر ہیں۔ تم مانگو مجھے جو تم خواہش کرو، میں تمہیں سب دوں گا جو کہو تم انامیتا۔ حسیب مجھے۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ حسیب بول رہا تھا۔ وہ جب بولتا تھا وہ صرف اسے سنتی تھی۔ خاموشیاں آواز ہیں، تم سننے تو آؤ کبھی، چھو کر تمہیں یہ کھل جائیں گی گھر ان کو بلاؤ کبھی۔ میرے برسوں کی کمائی، عزت، میرا رتبہ سب مٹی میں مل جاتا اگر آج تم نہ ہوتی۔ تھینک یو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر جذب سے بولا۔ آج کھوئے ہوئے لہجے میں اس نے حسیب کو دیکھا۔ جب فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو عشا۔ یہ آواز حقیقت کا تماچا اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا شہر چلتی ہوا کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ سب کچھ چکنا چور ہو گیا۔ اس کی قسمت کا آئینہ اس کے دھندلے وجود کا عکس خود میں دکھ رہا تھا۔ بنا کر فقیروں کا ہم بحث غالب تماشائی اہل اکرم دیکھتے ہیں۔ یس، آج ہی پارٹی ہے عالم ہاؤس میں۔ آف کورس آئی ایم ویری ہیپی۔ صرف تمہارا انتظار ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر فون سننے کی غرض سے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر دھیما مسکرائی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جتنے جا کے تو وکیا 10 اور بازار کتھے آ، میری جذباتیاں دا ہویا 10ویں بیپار کتھے آ۔ انامیتا میڈم، یہ سوٹ بڑی میڈم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ چاہتی ہیں آج کی پارٹی میں آپ یہ پہنیں۔ ایک خوبصورت، بھاری اور قیمتی ڈریس ملازمہ اس کے کمرے میں رکھ کر گئی تھی اور ٹھیک 15 منٹ بعد مسز ناز عالم مغرور سی چال چلتی اس کے کمرے میں ہاتھ میں سرخ مخملی کیس تھامے آئی تھیں۔ یہ لیں انامیتا، آج کی پارٹی میں آپ یہ ڈائمنڈ سیٹ پہنیں گی۔ ہیرے کا چمکتا سیٹ ناز عالم نے انامیتا کے سامنے کیا۔ آج کی پارٹی میں حسیب کے بعد سب کی نظریں آپ پر ہی ہوں گی۔ آخر کو آپ مسز حسیب عالم ہونے کے ساتھ آپ ان کے وکیل بھی ہیں، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میڈیا بہت سے گھما پھرا کر سوال کرے گی تو آپ اس کے لیے تیار رہیے گا۔ جی ماما۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ہماری محبت، انس، عقیدت تم ترازو میں تولتے ہو، بتاؤ نہ پاؤ عزت کتنے میں بیچتے ہو۔
पार्टी शुरू हो गई थी, मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। हसीब आलम भी निक सिंह से तैयार अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ पार्टी में मौजूद था। हसीब बेटा कहाँ है? अनामिता अभी तक नहीं आई क्या? हमें उनसे इस लापरवाही की उम्मीद हरगिज नहीं थी। अभी पूरा मीडिया इधर मौजूद होगा। बीवी होने के अलावा वो आपकी वकील भी है। कितने ही सवालों के जवाब देने हैं इन्हें, देखो कहाँ पर है वो। नाज आलम अनामिता को पार्टी में ना पाकर हसीब के पास आई। जी मॉम, मैं देखता हूँ तैयार हो रही होगी। अनामिता वो आवाज़ें देता कमरे में आया जब वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ना ही कमरे में, ना ड्रेसिंग रूम में और ना बाथरूम में, मगर बेड पर एक तहशुदा कागज़ के साथ गुलाब का फूल मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम, आपकी जीत मुबारक हो हसीब, आने वाली ज़िंदगी की हर खुशी मुबारक हो हसीब। मुझे पूरा यकीन है मेरे यहाँ ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप भी मुझे ढूंढने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आपने आज मुझे जब गले लगाया तो यकीन करें आज मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरे शौहर हसीब आलम ने गले लगाया है, ना कि नाज आलम के मजबूर बेटे ने। आपने कहा था ना आपसे कुछ मांगू तो एक ही चीज़ मांगती हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही अनामिता के आगे से हसीब आलम हटाइएगा। बाकी आपके हर एहसान का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। अनामिता, जुदा थे हम तो मैसर थी गुर्बतें कितनी, वहम हुए तो पड़ी हैं जुदाइयाँ क्या क्या। सुकून रूह हम तुम्हारी खूबसूरती के असीर हैं। मामा ऐसा कैसे वो इनकार कर सकता है शादी से, वो भी चंद घंटे पहले। सर ही तो घूम गया था उसका। शादी वाले घर में निकाह से चंद घंटे पहले दूल्हे का इनकार, और इसकी माँ कितने सुकून से उसे बता रही थी। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। उसके भारी जेवरात और चूड़ियों की झनकार कमरे की खामोश फिजा में गूंजी। ज़िहा बेटा, उसके माँ बाप माजरत कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं कि इनका भिगोड़ा बेटा भाग गया और आपने और बाबा ने कबूल कर ली इनकी माजरत। एक बेटी की माँ होकर उसने बात काट कर बोला। लहजे में गुस्सा समोए वो चीखी, कैसे माँ बाप थे इसके? आप दोनों की ख्वाहिश पर मैं ये शादी कर रही थी, मेरा कोई अफेयर नहीं था माँ। हमेशा क्यों आप और बाबा का फैसला मेरी ज़िंदगी के लिए गलत होता है? बेटा ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। कहाँ है मेरे इन लॉज जिनसे एक बेटा नहीं संभाला गया? तंसिया मुस्कुराहट के साथ हाथ ऊंचा करके बोली, मुझे लगता है वो भी ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधा था। लड़का था ना तभी भाग गया है, मगर नहीं, मैं इसकी बुज़दिली की वजह से कभी अपने करैक्टर पर उंगली नहीं उठने दूंगी। ये वो भी याद रखेगा ज़िया सलीम को, और याद रखेगा आप दोनों भी। ज़िया कहाँ जा रही हो बेटा? उसको बाहर निकलते देख वो पीछे बोली, अपनी ज़िंदगी का फैसला करने। ऐसा चल है ज़िंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है। सर अनामिता मैम कहाँ पर हैं? हमें अभी तक नज़र नहीं आई। मीडिया वालों का अंबार सा लग गया था हसीब आलम के इर्द गिर्द। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप ये केस जीत गए हैं, मगर सर मिस सना ने ये केस आपके खिलाफ क्यों किया? आपका इनके साथ कोई चक्कर? ऐसा कुछ नहीं था। हसीब शदीद गुस्से से बोला। नाज आलम ने फौरन अपने हाथ का दबाव अपने बेटे के हाथ पर डाला, कहीं वो अपने गुस्से की बदौलत सारा काम ही खराब ना कर दे। सर हमें अभी मालूम हुआ है अनामिता चौहान इस मेंशन में मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ चली गई है? क्या वो खुद गई है? सर हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप दोनों ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थे। तो क्या आप पर ये इल्ज़ाम ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है? रिपोर्टर तो जैसे सारे सवाल घर से तैयार करके आए थे। देखें अनामिता बच्ची की तबीयत नासाज है और हमारे लिए इनकी तबीयत से भरकर कुछ नहीं है, इसीलिए हमने ही इन्हें आराम करने का कहा है। और जहाँ तक रही बात पार्टी की, तो वो अरेंज थी, मेहमान आ चुके थे, नहीं तो हम अनामिता के लिए ये पार्टी भी कैंसिल करवा देते। नाज आलम अपने रोबदार अंदाज में सामने आई। अनामिता आलम बीमार? क्या
कोई गुड न्यूज़ है मैम? रिपोर्टर को न्यूज़ चाहिए थी जो शायद मिलने ही वाली थी। ये इंतहाई पर्सनल सवाल है, वैसे भी ऐसी न्यूज़ कहाँ चुकती हैं, आप लोग सुनते हुए आ ही जाते हैं। एक कड़ाका जवाब नाज आलम ने रिपोर्टर के मुंह पर मारा था, जो अपना सा मुंह लेकर साइड पर हो गए थे। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया नमिता चौहान, नाज आलम ने दिल में सोचा। सुर्ख और क्रीमी रंग के भारी अरूसी जोड़े को दोनों हाथों में थामे वो सबसे बेपरवाह ऊंची लंबी हील में मुकीद पांव फैक्ट्री की राहदारी में दाखिल हुई। कदम कदम बढ़ाते वो सब वर्कर्स की नज़रों की परवाह किए बगैर मजदूरों के साथ मसरूफ पैंट कोट में मुबलिस खड़े शख्स के सामने जा खड़ी हुई। सफ़ीर, मौलवी साहब को कहो निकाह शुरू करें। सुर्ख रंग की लिपस्टिक से रिंगे होठों में हरकत हुई, जिसके बासत होठों के ऊपर मौजूद नथ के लटके मोती में जिन्स हुई। और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं निकाह कर लूँगा? नज़र हटी थी। सुर्ख होठ मुस्कुराहट में ढिल गए। अगली ही लम्हे पिस्तौल का रुख उस लड़के की तरफ था। दफाता तर्क तलक में भी रसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। पार्टी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता आलम मेंशन से जाते जा रहे थे। वो इस वक्त अपने कमरे में अपने बिखरे पड़े बेड पर बैठा हसीब आलम, चाय मगोनियाँ तमस्खरा उड़ाती सरगोशियाँ हाथों में थाम रखा वो हाथ, सब एक साथ इसके थके माद सांप पर हमलावर हुए। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, सोंधी सोंधी लगती है तब माजी की रसवाई भी। अनम जल्दी उठो, सिद्रा ने झुंझोड़ कर अनमिता को बिस्तर से उठाया। क्या हुआ सिद्रा, आप ही क्यों तंग कर रही हैं? संडे है, सो लेने दें प्लीज। नहीं अनमिता, तुमने वादा किया था आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। देवपीर की सालगिरह है यार, अगले हफ्ते मैंने बहुत ज़रूरी शॉपिंग करनी है। आप ही यार प्लीज़। नहीं, इस हफ्ते कोचिंग का बहुत टफ शेड्यूल था, मुझे आराम कर लेने दें। अनमिता ने अल्तजाइया लहजे में कहा। सिद्रा के साथ शॉपिंग मतलब पूरे दिन की ख्वारी। मरी रहो बिस्तर पर तुम अनमिता, मैं मम्मा को बताती हूँ, वो ही तुम्हें सीधा करेंगी। सिद्रा ने गुस्से से पैर पटक कर इसकी दुखती रग पर पाँव रखा। नहीं मम्मा को क्यों, मैं उठ रही हूँ। अनमिता रुआंसा हुई। जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अपने हाथ की कलाई में मौजूद नाजुक सी घड़ी पर वक्त देखते हुए सास के लहजे में कहा। अनमिता सर झटक कर फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। चौहान हाउस 2 मंजिला खूबसूरत और पुरकशिश इमारत थी, जिसमें कुल 5 अफराद रहते थे। ज़ियाद चौहान घर के सरबराह, इनकी बेगम अस्मा चौहान और इनके 3 बच्चे। सबसे पहले सिद्रा चौहान, फिर अनमिता चौहान और सबसे आखिर में आली चौहान। ज़ियाद चौहान का ख़ानदान बहुत वसी नहीं था। माँ बाप हयात नहीं थे। इनके अलावा एक और भाई था जो दूसरे मुल्क में आबाद था। ना कभी उन्होंने इन लोगों की खबरगिरी की और ना ही कभी चौहान साहब को इनसे रब्ता रखने की ज़रूरत महसूस हुई। अस्मा चौहान एक खूबसूरत खातून थी जिनका तलाक मुतवस्सित तबके से था। इनके भी वालिदैन हयात नहीं थे। 2 शादीशुदा भाई थे जिनके साथ बहुत कम सलाम दुआ थी। वजह ज़ियाद साहब को अपने गरीबी ससुराली पसंद नहीं थे। अस्मा से शादी की बड़ी वजह इसकी खूबसूरती थी। ज़ियाद चौहान अमीर कबीर होने के बावजूद और की ख्वाहिश करने वाली शख्सियत थे। तन्हाई मौका परस्त अस्मा चौहान एक टिपिकल घरेलू खातून, जिनके लिए इनके शौहर का फैसला हरफ़े आखिर होता था। सिद्रा चौहान शक्लो और सूरत में माँ जैसी खूबसूरत थी, मगर अपने बाप जैसी खुद गर्ज फितरत भी रखती थी। सिद्रा की मंगनी 1.5 साल पहले ज़ियाद चौहान ने अपने दोस्त के बेटे दबीर हसन से करवाई थी, जिसके बाद से सिद्रा ने खुद को और ही ऊंचा समझना शुरू कर दिया है। अनमिता चौहान मुख्तलिफ थी, ना वो शक्ल सूरत में माँ बाप में से किसी पर गई थी और ना ही सीरत में। उसे अपने अंदर गिरद बसने वाले रिश्तों में इंटरेस्ट था। रिश्तों को संवारने वाली लड़की लॉ की तालबा थी, अभी उसकी प्रैक्टिस की शुरुआत होनी थी। और सबसे आखिर में आली चौहान कॉलेज का स्टूडेंट था। सब में छोटा होने की वजह से सबका लाडला था, थोड़ा बिगड़ा सा, मुंह फट, जिद्दी, जो सरासर उसके खुद के माँ बाप के बेजा लाड प्यार का नतीजा था। हसीब बेटा कहाँ जा रहे हैं आप इतनी सुबह? 7 बजे के करीब हसीब आलम को तैयार श्यार बाहर जाता देखकर लॉन में बैठी नाज आलम ने इस्तफास किया।
हसीब वक्त का बहुत पाबंद था और पूरे 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता था, मगर अभी तो काफ़ी वक्त था उसके ऑफिस जाने में। ममा, ईशा की फ्लाइट थी, आज उसे ही पिक करने जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। ईशा? नाज आलम के माथे पर बल पड़े। ठहरे हसीब, हमने आपको कितनी दफ़ा मना किया है, हमें आपकी ईशा के साथ दोस्ती कतई पसंद नहीं। और आप क्या इनके ग़ुलाम हैं जो सुबह सुबह इन्हें पिक करने जा रहे हैं? मॉम, अभी जाना ज़रूरी है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मैं आकर बात करता हूँ, बाय। अपनी बात फरामोश किए जाने पर नाज आलम पहलू बदल कर रह गई। हमें जल्द ही इस ईशा नामी मसले का हल निकालना पड़ेगा, इससे पहले हमारा बेटा हमसे दूर हो जाए। माल में मुसलसल ख्वार होने के बाद सिद्रा ने दबीर के लिए बामुश्किल एक घड़ी और परफ्यूम पसंद किया। अब अनिमिता पर एहसान करते हुए फूड कोर्ट में आई थी, जिस बेचारी ने सिद्रा की जल्दी में सुबह का नाश्ता तक नहीं किया था। अनम, ये किस गंदे अंदाज में खा रही हो, सब हमें देख रहे हैं। सिद्रा ने अनमिता को डांटा, जो हाथ में पिज़्ज़ा का स्लाइस केचप के साथ खा रही थी। अनमिता ना थम कर एक नज़र अपनी बड़ी बहन के हाथ में मौजूद छुरी कांटे को देखा, जिससे खाना मुश्किल उसके अच्छे अंदाज में खाने का तरीका होता है। फिर उसने इस पास नजरें घुमाई, सब खुद में ही मुश्किल थे। आप ही प्लीज़, मुझे भूख लग रही है, अभी कोई लेक्चर नहीं। गवार। सिद्रा ने मुंह बसोरा। हाय गज। दबीर ने एक नज़र अनमिता को देखा, जिसके होंठों पर केचप लगी थी। दबीर। सिद्रा का चेहरा चमक उठा, वो इसके गले मिली। सैड व्हाट आ प्लेजेंट को एक्सीडेंट। और इधर कैसे? हाय अनमिता। दबीर ने बाजू उसके शाने के करीब ले जाने की कोशिश की तो अनमिता आगे को खिसक गई। सिद्रा ने उसे घूरा। आज हमारी पड़ाकू साली साहबा भी बाहर की दुनिया देखने आई हैं। उसका अंदाज अभी भी खासा फ्रैंक था। हाँ, मैं ही उससे लेकर आई हूँ, पढ़ पढ़ कर बीमार ही हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। जी दबीर भाई। ओ कम ऑन, कॉल मी दबीर भाई, कितना ओल्ड फैशन वर्ड है। ब्रो लफ्ज काफ़ी इन है। दबीर ब्रो। अनमिता ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ उसे कहा। वो जबरा मुस्कुराया। अच्छा कस, मैं चलता हूँ, ज़रूरी काम है, तुम लोग एंजॉय करो। दोबारा सिद्रा से मिलकर वो निकल गया। तुम इतनी जेलस क्यों हो दबीर से? अच्छा, इतना अच्छा है वो, और तुम हो कि इससे सीधे मुँह बात नहीं करती। ऐसी बात नहीं है आप ही, मुझे बस उसके अंदाज नहीं पसंद, मतलब फ्रैंक्स। दलाल उसके दरीचे के पेश की। मैंने किसी को पतली गली से नहीं निकलने दिया। वो बस तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट करता है, नहीं तो तुम्हें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे। सिद्रा ने तंजिया लहजे में कहा। अनमिता अपनी खुदगर्ज बहन को देखकर रह गई। आप ही गाड़ी क्यों रोक दी बीच सड़क में? सिद्रा को गाड़ी रोकते देख अनमिता ने परेशानी से पूछा। अनम यार, मुझे एक ज़रूरी काम था, तुम यहाँ से की बुक करवा कर चली जाओ। नहीं आप ही, मैं पहले बहुत थकी हुई हूँ, बारिश भी होने वाली है, आप मुझे घर छोड़कर जहाँ मर्जी चली जाए। अनमिता, अभी इसी वक्त गाड़ी से उतरो, मुझे ज़रूरी काम। डू बी स्टूपिड। आप ही बारिश। अनमिता नाव। खुद ही आगे होकर अनमिता की तरफ का दरवाज़ा खोला। अनमिता ने भीगी नज़रों से अपनी बड़ी बहन को देखा, जो जन से गाड़ी भगाकर ले गई थी। अनमिता ने गाड़ी बुक करवाई, खुद साइड पर होकर गाड़ी खड़ी हो गई। चंद मिनटों में ही बारिश तेज हो गई, वो भी इस सर्दी में भीगने की वजह से कांप रही थी। आई हेट यू आपी। अच्छू, ठंड कहाँ बर्दाश्त होती थी उससे। सर्दियों में तो बिल्कुल घर में छुप जाती थी, उसे बहुत ठंड लगती थी। सर्दियों का बुखार भी उसके लिए शदीद नुकसानदेह था। अनमिता ने टाइम देखा, 15 मिनट हो गए थे, अभी भी कैब नहीं आई। इससे पहले वो दोबारा में कार वाले को कॉल करती, काले रंग की सिविक इसके पास आई। अनमिता जल्दी से कांपते हुए बैक डोर खोलकर बैठ गई। अंकल अच्छू, इतनी लेट में पूरा अच्छू भीग गई हूँ, कांपते हुए लहजे में बोली। हसीब चौंक गया। हसीब ने गाड़ी इस लड़की की मदद के लिए ही रोकी थी, जो काफ़ी भीग गई थी और बाकायदा कांप रही थी, मगर इसके ऑफर किए बगैर धड़ल्ले से बैठ जाने पर वो चौंकने के साथ उसे बोल्ड कहकर पहली राय भी कैम कर गया था। किधर जाना है? फ्रंट मिरर से एक नज़र उसके भीगे लेटों में छुपे चेहरे पर डालकर बोला। क्या अंकल, मैं बुक अच्छू करते अच्छू हूँ
हुई, एड्रेस डाला, अच्छू डाला तो था चौहान हाउस, अच्छू। हसीब ने टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया, उसे अब समझ आई ये लड़की उसे कैब वाला समझकर धड़ल्ले से गाड़ी में बैठ गई थी। खैर गाड़ी में इसने हीटर ऑन कर दिया था, एक आधा नज़र वो अपनी मुफ्त की सवारी जो अब कुदरत बेहतर थी इस पर भी डाल लेता। शुक्र है घर आ गया। ये ले, अपने बैग से 500 का नोट निकालकर उसने हसीब की तरफ बढ़ाया, मगर एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं डाली। ध्यान सारा घर के दरवाजे की तरफ था। अगली बार किसी की भी गाड़ी में घुसने की बजाय एक दफ़ा मालूम कर लेना कि ये वो ही गाड़ी है जो आपने बुक करवाई है। इन मामलों में बेध्यानी बड़े नुकसान का बासत बनती है। गंभीर आवाज़ सुनकर अमृता ने चौंक कर सर उठाया, नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठे उस शख्स की तरफ गई। दिल जोर से धड़का। टन उसे हसीब की बात की कतई समझ न आई अगर मोबाइल पर कैब ड्राइवर का मैसेज ना आता जिसने तेज़ बारिश की वजह से आने से मना कर दिया था। आई एम सो सॉरी, मुझे वो लब भेज गई। अब वो अपनी कम अकली पर उसे क्या कहती। इस वक्त तो उसे आने की जल्दी थी जिसकी वजह से उसने गाड़ी का नंबर तक देखने की जहमत नहीं की थी। इट्स ओके, थैंक्स मुझे सेवली घर पहुंचाने के लिए, अनामिता ने झुकी नज़रों से मशकूर लहजे में कहा। माय प्लेयर। गाड़ी चली गई। अनामिता बादल गरजने की आवाज़ पर होश में आई और घर के अंदर दौड़ गई। फिकत एक नज़र देख दिल 100 दफ़ा धड़का। हालात सही नहीं लगते, पलकों को कहो बाहर किए रखे। दिल अपनी रफ्तार से गुजरे। उस वाक़ये के बाद अनामिता ने सिद्रा से नाराज़गी जतानी चाहिए, मगर सिद्रा को क्या फ्री फर्क पड़ता, बल्कि उसके इग्नोर करने पर अनामिता को ही उसे बुलाना पड़ा। सब सेट था। अनामिता की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। सिद्रा अपनी वो ही रोज़ की रूटीन, कभी किसी पार्टी तो कभी किसी फंक्शन। आली साहब आजकल मसरूफ़ थे, इनके कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला था। असमत चौहान ज़्यादातर सिद्रा की मदर इन लॉ के साथ होती। इन सब में ज़्यादा चौहान परेशान थे। इनका बिजनेस में काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। लॉस इतना बड़ा था इनकी साख्त को गहरा असर पड़ा, मगर घर में आजकल परेशानी वाला माहौल था। ज़िया साहब किसी न किसी औलाद को डांट देते। आजकल तो आली की भी खैर नहीं थी। कभी उनका गुस्सा असमा चौहान पर उतरता तो कभी अनामिता पर। बाबा आप परेशान ना हो, मैं दबीर से बात करूंगी, वो अंकल को कहेगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। क्या फ़ायदा जब अपने ही अपनों के काम ना आए। सिद्रा ने दुखी लहजे में कहा, मेरा बच्चा, बस तुम्हें ही फिक्र है अपने बाबा की, बाकी सब के लिए तो हराम का माल है ना। उन्होंने अनामिता को घूरा जो नजरें नीचे झुका गई, मगर अपनी गलती ना तलाश सकी। मुनसिब थे जो लोग मेरी जिंदगी के, अक्सर वो ही मिले हैं बड़ी बेरुखी के साथ। सिद्रा ने दबीर से बात की थी, वो तो उछल ही पड़ा। सिद्रा मेरी जान, तुम तो जानती हो ना आजकल बिजनेस की कंडीशन कैसी है। ऐसे में मैं और डैड अंकल की मदद चाहते हुए भी नहीं कर सकते, मगर दबीर बाबा बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं सिद्रा, अपना बिजनेस बंद कर दूं? कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी रकम इनकी मदद करने के लिए? मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, ज़रा सोचो। जान, तुम्हारी ख्वाहिश कहाँ से पूरी करूँगा? क्या तुम मान लोगी अपनी ख्वाहिशात? जो ख्वाब तुमने हमारी शादी को लेकर देखे, तुम्हारी ड्रीम वेडिंग। दबीर को अच्छे से आता था सिद्रा को बातों में उलझाना। दोनों को 7-1.5 साल हो गया था। सिद्रा की फितरत वो जान गया था। ये भी तो है दबीर, अब क्या होगा? अच्छा रुको, मैं डैड से फिर भी बात करूँगा, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता मैं। ओके बाय। नाज आलम साहबा आपसे मिलने आई हैं। नाज आलम, चौहान साहब की हैरानगी हद से सवा थी। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, कैसे हैं आप और आपकी मिसेस? हाँ जी वालेकुम सलाम, हम ठीक। आप सुनाएं आलम साहब, आप कैसे हैं और हसीब कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अयाज साहब, आज हम यहाँ बहुत ही अहम बात करने के लिए आई हैं, बल्कि ये समझ लीजिए आपसे कुछ मांगने आई हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाएंगे आप, अपनी मिसेस को भी बुला लें। जी ज़रूर। क्या मामा, अभी ऐसे कैसे? अभी तो मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मामा प्लीज़ आप बाबा को समझाएं ना, इतनी जल्दी शादी, अभी मैं तैयार भी नहीं हुई। अनामिता रोआंसा हुई। शादी? अभी तो इसने अपनी ज़िंदगी में शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। क्यों इनकार
کروں میں تمہارے پاپا کو؟ تمہیں نہیں پتہ اس وقت ہمارے کیسے حالات چل رہے ہیں، ایسے میں اتنے اچھے رشتے کا آ جانا غمینت سمجھو ماما پلیز۔ میں ہرگز بھی چوہان صاحب کو انکار نہیں کر رہی، تمہیں مسئلہ ہے خود ہی جا کر انکار کر دو، مگر اس کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا ماما، اس نے تڑپ کر کہا۔ مقاسمہ چوہان وہاں سے چلی گئی۔ بہت ہمت کر کے وہ اٹھی تھی چوہان صاحب کو فیصلہ سنانے، مگر تبھی سدرا شدید غصے میں کمرے میں آئی۔ کیا بکواس کی تم نے ماما سے، تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ آپی میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھ سے بھی بابا نے پوچھا تھا، میں نے تو ان کو انکار نہیں کیا بلکہ ان کے فیصلے کی عزت کی۔ تمہیں تو بہت پیار ہے نا اپنے رشتوں سے، اور اب جب بابا کو تمہاری ضرورت ہے تم خود غرضی دکھا رہی ہو۔ آپی میں نے کیا خود غرضی دکھائی ہے، اور بابا کو میری ضرورت کیسے؟ تمہارا ہونے والا سسرال بہت امیر ہے، وہ بابا کے ڈوبتے بزنس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس سے بڑا اور کیا بات ہوگی؟ تم بھی بابا کی نظر میں اچھی ہو جاؤ گی۔ انمیتا کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا، کاش وہ اسے کہہ دیتی کہ بابا کو اس کی فکر ہے، وہ چاہتے ہیں وہ اپنے گھر کی ہو جائے، مگر یہاں تو سرے سے ہی ہر چیز مطلب کے مطابق ہو رہی تھی۔ آپی میرا سودا کیا ہے؟ انمیتا چیخی، پہلی دفعہ اس نے اونچا بولا تھا سدرا کے آگے۔ سدرا کو اپنی غلطی محسوس ہوئی، اسے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ انم، میں نہیں تمہیں روکوں گی، تم انکار کراؤ، سدرا نے شائستہ لہجے میں کہا، مگر اس سے پہلے مجھے فون کر کے دبیر کو انکار کرنے دو۔ دبیر بھائی کو انکار کس چیز کا؟ اس رشتے سے انکار؟ انکل اور آنٹی آئے تھے کل، وہ بابا کو کہہ کر گئے ہیں کہ وہ ہماری شادی جلد کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی پورے دھوم دھام سے، مگر ہماری کنڈیشن تو تمہیں معلوم ہے نا انمیتا، جب وہ لوگ ہمارے حال کو جانیں گے تو خود ہی انکار کر دیں گے، اس سے اچھا میں بابا کی عزت رکھ لوں اور خود ہی انکار کر دوں۔ انمیتا تمہارے انکار کے ساتھ میری زندگی جڑی ہے، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تم بابا کو بتاؤ، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ انمیتا نے کئی دفعہ اپنا دل مارا، یہ بات کہتے ہوئے وہ ہی جانتی تھی۔ اوہ شکریہ انمیتا، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے تمہیں واٹس ایپ میں جیجو کی پکس سینڈ کی ہے، دیکھ لینا، بلومنگ بہت ہینڈسم ہے۔ اس کا گال کھینچ کر سدرا باہر چلی گئی۔ صرف ایک نظر، پسندیدہ نظر، اس نے تو ایسی کوئی سوچ نہیں سوچی تھی کہ وہ شخص اس کا ہوگا۔ وہ چہرہ کتنی بار اپنے لاشعور میں دیکھ چکی تھی، تصویر میں اپنی مغرور پرسنالٹی کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ انمیتا نے ایک دفعہ پھر نظروں کو موبائل کی اسکرین کی طرف مقصر کیا۔ ہم اس کی یاد دہانی میں رہیں گے، ایسے جیسے کاغذ کوئی کونے سے مڑا رہ جائے۔ مسٹر پرفیکٹ پھر شرما کر موبائل آف کر گئی۔ اپنی پریکٹس چھوٹنے کا دکھ اب قدرے کم ہو گیا تھا۔ کیا یہ حسیب عالم کا سحر تھا؟ اسے بھی زندگی میں محبت ملنے والی تھی، وہ محبت کو ترسی لڑکی، وہ محبت سے عاری شہزادہ۔ وہ حجلت عروسی میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ حجلت میں کمرے میں آیا، فون کان کے ساتھ لگائے، وہ اب ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ چند منٹوں بعد وہ باہر آیا۔ اب اس کی ڈریسنگ قدر مختلف تھی، شیروانی کی بجائے بلیک شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس وہ اب کف فولڈ کا تک گھڑی پہن رہا تھا۔ یار کہہ تو رہا ہوں میں آ رہا ہوں، تم سے تو زیادہ اہم نہیں ہے نا یہ دن؟ ارے بابا اچھا رکھو فون، آ رہا ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی سرخ رنگ کی ڈبی اپنی نئی نویلی دلہن کی گود میں پھینکی۔ یہ لو اپنی منہ دکھائی چینج کر لینا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے آرزو کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ سفیر مولوی صاحب کو کہو نکاح شروع کریں۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے رنگے ہونٹوں میں حرکت ہوئی، جس کے باسط ہونٹوں کے اوپر موجود نتھ کے لٹکے موتی میں جنس ہوئی۔ اور تم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نکاح کر لوں گا؟ نظر ہٹی تھی، سرخ ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اگلے ہی لمحے پستول کا رخ اس لڑکی کی طرف تھا، گولی اس کے پیچھے والی دیوار پر لگی۔ سارے مزدور ہڑبڑا گئے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم سے نکاح؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں میں یہ نکاح نہیں کروں گا، مجھے نہیں قبول۔ ساؤنڈ انٹرسٹنگ۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی۔ کیسا لگا؟ اگلے دن اخباروں اور پوری میڈیا میں یہ خبر نشر ہو کہ ایک لڑکا عین نکاح والے دن بھاگ گیا، پھر اس کی دلہن نے اسی کی فیکٹری میں گھس کر اس سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا، اور انکار کرنے کی صورت میں اسے گولی مار کر فرار لڑکا بھاگ گیا۔
ایک جھمکا سا ہوا دماغ میں۔ جلدی جلدی ضیاء نے اسے ہومس اسی پوزیشن میں کھڑا دیکھ کر کہا۔ ارسلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدعو ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے ارادے ہرگز بھی ڈھمکمائے نہیں لگ رہے تھے۔ تو تم یہ نکاح کیسے کر سکتی ہو بغیر ولی کے؟ اس نے آخری سی کوشش کی۔ اس کی فکر تم مت کرو سفیر، نکاح شروع کرواؤ، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ضیاء چلتی ہوئی اپنے کچھ منٹ پہلے کے دولہے کے سامنے آئی۔ اگلی بار تم جیسا کوئی اور بزدل انسان نکاح والے دن دوڑنے سے پہلے اس بےعزتی کو یاد رکھے گا۔ ایک لڑکی کی عزت اتنی بے مول نہیں ہوتی کہ قصور کسی اور کا اور کہا ہو اور رسوائی اس کے مقدر میں آئے۔ ارسلان گمسم سا اسے دیکھتا رہ گیا، جو آندھی کی طرح آئی تھی اور طوفان کی طرح جا رہی تھی۔ بالائے طاق رکھ کر ہر ایک اختیار کو خود مشغلہ ہے حسن کا رسوائی ڈھونڈنا۔ اس وقت وہ اپنی معمول والے حلیے میں تھی۔ بھورے بال جو میسی سے جوڑے میں قید تھے، سفید شفاف چہرہ جس پر سردی کے باعث سرخی چھائی ہوئی تھی، درمیانے لب جو کسی بھی مصنوعی شے سے پاک، سنہری آنکھیں جو غیر مرئی نقطے پر مرکز تھی۔ صوفے میں آرام دہ انداز میں صوفے کی پشت سے سر لگا کر بیٹھی تھی جب دو نرم ہتھیلیوں نے اس کی آنکھوں کو ڈھانکا۔ ضالے نہ تنگ کرو آپی یار، آپ کیسے پہچان لیتی ہیں؟ ضالے نے منہ بسورا اپنی مجازی خدا سے پوچھا۔ ضیاء نے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے مزے سے کہا۔ ضالے سرخ ہوئی۔ آپی نہ کریں۔ کیا نہ کروں؟ کیا نہیں ہے وہ تمہارا مجازی خدا؟ اس کے سرخ ہوتے چہرے سے محفوظ ہوتی مزے سے بولی۔ ویسے ہے کہاں وہ نکما؟ آپ نے بلایا، ہم چلے آئے مادام۔ سفیر ہاتھ میں ونیلا آئس کریم کی فیملی سائز بکٹ پکڑے اس کے ساتھ ہی صوفے پہ آ بیٹھ گیا۔ ہے آئس کریم؟ ضالے خوش ہوئی۔ اس سردی میں آئس کریم واقعی مزہ آ جائے گا۔ میں نے تو آئس کریم نہیں منگوائی۔ ظہر نے بھویں اچکائیں۔ تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہیبی وائف کھا لیتے ہیں۔ کیوں وائف؟ سفیر نے مزے سے پہلا چمچ لیتے ضالے کے کندھے پر ٹھٹکا دیا جو اسے گھور کر رہ گئی۔ سفیر نہ کرے، میں آپی کے بغیر نہیں کھانے والی۔ ضالے نے ضحیٰ کے شانے پر لاڑ سے سر رکھ لیا۔ تو تمہیں کس نے کہا میں نہیں کھانے والی؟ ظہر نے سفیر سے باکٹ کھینچی اور آئس کریم کھانی شروع کر دی۔ اس کے دیکھا دیکھی ضالے اور سفیر بھی شروع ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں تینوں نے پورا ڈبہ خالی کر دیا۔ ضالے باقاعدہ ناک بند ہو جانے پر سو سو کر رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم چینوں کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ صوفے میں دائیں جانب ضحیٰ، بیچ میں ضالے اور دائیں جانب سفیر بیٹھا ہوا تھا۔ ضالے کا سر ضحیٰ کے کندھے پر تھا۔ آپی آئی لو یو آپی۔ ضالے کی آواز بھرا گئی تھی، اسے دل سے دکھ ہوا تھا۔ لو یو ٹو چنگا، لو یو تھری۔ سفیر کے گلا بیٹھنے کی وجہ سے باریک سی آواز نکلی۔ ہاں 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 ہاں، تینوں کے کہہ کے ٹی وی لاؤنج میں گونجے۔ دوستی کی وجہ نہیں ہوتی، دوستی کی سزا نہیں ہوتی، دوستی میں ہوتی ہے ایمانداری، دوستی میں دنیا داری نہیں ہوتی۔ عجیب رشتہ ہے دوستی۔ دوستی میں میں تمہاری نہیں ہوتی۔ دوست جان سے پیارا ہوتا ہے، دوست جان پیاری نہیں ہوتی۔ ضحیٰ ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ دونوں سفیر کے گھر میں موجود تھے۔ ضحیٰ لیپ ٹاپ پر ضروری کام کر رہی تھی جب سفیر نے بات چھیڑی۔ کس بات کو؟ بغیر دیکھے سوال کیا۔ تمہارے نکاح کو۔ ضحیٰ جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے مومو اس کی انگلیاں تھمی، مگر پر ہنس ڈھیٹ بن کر بات انسنی کر گئی۔ ضحیٰ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سفیر نے لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ سفیر واپس کرو، تمہیں معلوم ہے نا کتنی بری لگتی ہے مجھے یہ عادت، وہ غصے سے بولی، اور مجھے اپنی بات کا اگنور کیا جانا برا لگتا ہے۔ ضحیٰ میڈم اچھا کیا ہے بولو۔ ضحیٰ نے اپنے دونوں بازو سینے سے لپیٹے۔ ضحیٰ ایک ہفتہ ہو گیا تمہارے نکاح کو، مگر وہاں سے مسلسل خاموشی۔ بات عجیب نہیں کیا؟ آپی کا نکاح؟ ضالے وہاں آ کر تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ شٹ ایسا؟ ضالے سفیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا۔ آپی یہ کیا چکر ہے مجھے بتائیں۔ کوئی چکر وکر نہیں ہے، اور تم کیا ہر وقت ادھر پائی جاتی ہو؟ گھر میں سکون نہیں ہے؟
सफ़ीर ने घूर कर कहा, ये मेरा घर है और मुझे अपने घर आने के लिए किसी आरे गारे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और प्लीज़ अभी लड़ाई नहीं, अभी आपको मेरी कसम, मुझे सब सच बताएं। आखिर सफ़ीर ने सारी बात इसके गोश गुजर कर दी। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती फिर बंद कर लेती। यार बोल भी दो अब, ज़ाले ज़हा ने झुंझला कर कहा। आप लोगों ने सही नहीं किया। ज़ाले सफ़ीर को कुछ बोलते ज़ाले फिर बोली, ज़हा आप ही सोचो, आपकी इस हरकत के बाद उसकी ईगो ज़रूर हर्ट हुई होगी, और दूसरा इतने सारे वर्कर्स में उसकी बेइज्जती। हाँ तो वो ये ही डिवर्स करता है, वो कहता है डिवर्स। मगर ज़हा आपी, आप सोच रही हो आपने निकाह करके उससे बदला ले लिया है या उसे कैद कर लिया है? नहीं आपी, कैद आप हुई हो, वो नहीं, वो मर्द है, वो आपके बगैर भी 3 और शादियां कर सकता है, मगर आप नहीं। ज़ाले ने बहुत अहम पहलू सामने किया। सफ़ीर आपको तो सोचना चाहिए था। आप ही एक तो इस वक्त गुस्से में थी, दूसरा लोगों का प्रेशर। आपकी अक्ल कहाँ गई थी? खालिस बीवियों की तरह दोनों हाथ कमर पर रख कर वो इनसे गोया हुई। हाँ तो मैं भी गुस्से में था उस वक्त, ढूंढी सी दलील दी। ज़ाले सर पीट कर रह गई। सफ़ीर गाड़ी निकालो, हम उनके घर जा रहे हैं। अरे अरे अरे, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? गार्ड इन दोनों को अंदर जाने से रोक रहा था, मगर वो उसके इस अनसुनी करके अंदर बढ़ गया। लॉन्ज में दाखिल होती ज़हा को अपने सास और ससुर मिले, जो शायद कहीं जाने के लिए तैयार हुए थे। एक लक सफ़ीर, यहाँ हर यहाँ पर तो पार्टियां उड़ाई जा रही हैं। कहाँ है आपका भगोड़ा बेटा? लड़की तमीज से, माना कि मेरे बेटे ने गलती की थी, मगर तुम्हें कोई हक नहीं बनता तुम उस तरह मुंह उठाकर हमारे घर में आकर झांको, और आप लोगों का हक बनता है मेरे किरदार को सवालिया निशान बनाए। आवाज हुंस ऊंची थी, साथ साथ वो कमरों के दरवाजे भी खोल खोल कर चेक कर रही थी। ऐ लड़की तमीज से, और जिसे ढूंढ रही हो वो यहाँ पर नहीं है। सफ़ीर फैक्ट्री चलते हैं। वो सफ़ीर के पास आई। वो दोनों मुड़े थे जब इन दोनों ने इस मगरूर औरत के मुंह से सुना। अच्छा ही हुआ वासिफ की शादी इस बदतमीज लड़की से नहीं हुई। ज़हा वापस मुड़ी। आपको अपने लफ्ज वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि आपके बेटे का निकाह मेरे साथ हो चुका है। ज़हा ने इनके सर पर बम फोड़ा, मगर वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा वासिफ की माँ ने इस पर फोड़ा था। ओह अच्छा किया तुमने ऑस्ट्रेलिया जाकर मेरे बेटे से निकाह किया है, क्योंकि वो तो निकाह से एक रात पहले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया था। सफ़ीर और ज़हा दोनों का दिमाग भंग से उड़ा। आप मजाक कर रही हैं ना? आपने तो कहा था कि वो निकाह के लिए तैयार होकर घर से निकला था, मगर फैक्ट्री में ज़रूरी काम आ गया। वो हड़बड़ाई। इसका मतलब झूठ बोला था हमसे? ज़हा का सर घूम रहा था। ऐसा बोलो। उन्होंने नागवारी से उसका ऊंचा बोलना बर्दाश्त किया। तुम कौन सी सच्ची हो? अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी कि मेरे बेटे से निकाह कर लिया है? हाँ 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 हाँ। ज़हा नफी में सर हिलाती ऊपर की तरफ दौड़ी और सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। गैर शनासा शख्स की बड़ी सी तस्वीर इस बात का सबूत थी कि वो ही कमरे का मालिक है। वो हारे कदमों से साथ वापस मुड़ गई। रंग मौला रंग दे नसीबा मेरा मारा हूँ, ये जग खुद गज़ बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों सफ़ीर? क्या मेरी ज़ात की कोई वक़्त नहीं? वो मजबूत लड़की अपने भाई के शाने पर सर रख कर रोने लगी। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? कैसे? ज़ाले सही कह रही थी। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है। मुझे ही उस वक्त अक्ल से काम लेना चाहिए था। सफ़ीर ने पशमान लहजे में कहा। कहाँ जा रही हो? उसे उठता देखकर बोला, अपने घर। मैं छोड़ आता हूँ। वो भी खड़ा हुआ। मैं बच्ची नहीं हूँ और साथ वाला है, घर चली जाऊंगी। अगली सुबह वो नाश्ते पर मौजूद थी। कल रात वाली तबीयत का शुबा तक नहीं था। नाश्ते की टेबल पर उसके माँ बाप भी मौजूद थे। बहुत कम होता था सब मिलकर इकट्ठे नाश्ता करें। आज मेरे दोस्त मिस्टर खुरम अपनी फैमिली के साथ, मैंने निकाह कर लिया है डैड। कांटे की मदद से प्लेट में मौजूद आमलेट खाते हुए उसने आम से अंदाज में कहा। सलीम साहब के हाथ
थमे मिसेस सलीम अपनी बेटी का मुतमिन चेहरा देखकर रह गई। क्या उसने निकाह बोला है? अंजम बेगम सलीम साहब ने मारे हैरत के अपनी बीवी से पूछा। जी नहीं, जहाँ क्या बोल रही हो बेटा? वो भी परेशान हुई। एक और जंग छिड़ने वाली थी। मॉम डैड, मैंने यानी जहाँ सलीम बैग ने निकाह कर लिया है। चेहरा पुरसुकून था। कौन है वो? सलीम साहब ने स्पार्ट लहजे में पूछा। उनके इतने सादा रिएक्शन पर मिसेस सलीम मुतहिर हुई। मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है उसका? याद नहीं। क्या करता है? पूछा नहीं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो कंधे उचका गई। नहीं मालूम। सलीम साहब गहरे इश्तियाल में आए। कांटा चम्मच प्लेट में पटक कर खड़े हुए। तुमने समझा क्या हुआ है हमें? हाँ, तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब है कि तुम कुछ भी करती फिरोगी। तुमने कसम खा रखी है हमेशा हमारा सर झुकाओगी। तुम्हें बिजनेस इसलिए करवाया था कि औलाद बनकर साथ दोगी, मगर तुम्हें कब एहसास और अब ये नया अजाब। तो हम समझते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम बदले में किसी भी राह चलते से निकाह कर लोगी। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। तुम्हारी माँ को कुछ मत कहिए। तरबियत वाली उम्र में इस मेंशन जैसे घर में मेरे साथ मैड होती थी, ना कि माँ। और तरबियत सिर्फ माँ ही की जिम्मेदारी नहीं होती, बाप का भी हक होता है। तुम सिखाओगी बाप का क्या हक होता है। ये जो तुम ब्रांडेड कपड़े गाड़ी सब लिए फिरती हो ना, सब मेरी मेहनत की कमाई है। डैड, मैं आपका साना थी जिस पर आपने अपनी मर्जी से सरमाया लगाया। आज आपने मुझ पर ये भी जता दिया कि मेरा इन पैसों पर कोई हक नहीं। और रही बात आपके खिलाफ जाने की, तो मैं कब गई आपके खिलाफ? मैट्रिक में मेरी ख्वाहिश थी साइंस पढ़ने की, मगर आपने इंजीनियर करवाई। नहीं हुई मुझसे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। फिर मैंने आर्मी में जाने की ख्वाहिश की, उसे रद्द कर दिया। मामा ने इकलौती होने की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। मैं चुप रही। सीए के पेपर्स देने का कहा तो आपने एमबीए करवाया। मैं चुप रही। आपने मेरी मंगनी की अपने दोस्त के बेटे से। मैं तब भी चुप रही। आपने अपनी लड़ाई में मेरी मंगनी ख़त्म की। मैं तब भी खामोश रही। आपने मेरा निकाह रखा। मेरा ज़रा सा इनकार इतना वलवला हुआ, मैं चुप कर गई। ऐन निकाह के दिन दूल्हा भाग गया। उसके घर वाले हाँ तंजिया हंसी उन्होंने की भी तो सिर्फ माजरत। अब मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लिया है तो आपको बुरा लग गया है। आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि लड़का और उसके घर वाले का स्टेटस क्या है। तो मेरी दुआ है वो बहुत ही गरीब घर से तलक रखता हो, इसका क्लास आप लोगों के बराबरी का ना हो, ताकि आपकी रिहाई सोसाइटी का जानने वाला हर शख्स मुझ पर तरस खाए। इतना कहकर वो अपने कमरे में बंद हो गई, मगर कमरे का दरवाज़ा जोर से मारना नहीं भूली। कोई ऐसा खत अर्ज हो जहाँ जिंदगी का समाज हो, जहाँ आंसुओं का लिहाज हो, जहाँ रोशनी का रवाज हो, जहाँ बेड़ियाँ ना हो पाँव में, जहाँ चादरों को घुटन ना हो, जहाँ ख्वाब अपना सफ़र करें तो किसी नगीना की छिन ना हो। कोई नज़म ऐसा देदार हो जहाँ एक दिए का मज़ार हो, जहाँ मंतों में गज़ल बंधे, जहाँ आयतों का हिसार हो। वहीं एक हल्का आशिका तेरा जिक्र करता हूँ मिले। कोई सर पे नवाज पड़ा मिले, कोई आह भरता हुआ मिले, जहाँ लोग ऐसे भले हैं जो मुसाफिरों को पनाह दें, जहाँ बरगदों से बुजुर्ग हो के जो नौजवानों को राह दें, जहाँ बारी खल्क खुदा की हो, जहाँ रेत सिर्फ दुआ की हो, जहाँ इस्तिखारे नए बने, जहाँ शायरी हो बला की हो। कोई एक ऐसी जगह जहाँ किसी आदमी को ज़र ना हो, जहाँ पर सुकून हो जिंदगी, जहाँ कत्ल होने का डर ना हो। मुनस्सिब थे जो लोग मेरी ज़िंदगी के साथ, अक्सर वो ही मिले हैं बड़ी बेरुखी के साथ। अरे बाबा अच्छा रखो, फ़ोन आ रहा हूँ। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सुर्ख रंग की डबिया अपनी नई नवेली दुल्हन की गोद में फेंकी। ये लो अपनी मुंह दिखाई, चेंज कर लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। हसीब के जाने के बाद अनामिता ने सर उठाया। बेड पर गिरने की वजह से सुर्ख रंग की डबिया खुल गई थी। इसके अंदर मौजूद हीरे की अंगूठी अपनी पूरी आबताब से चमक रही थी, मगर इसकी चमक इसकी तारीख किस्मत को नहीं चमका सकी। उसने अपने नाजुक हनाई हाथ बढ़ाकर डब्बी बंद कर दी। अब उसका इरादा कपड़े बदलने का था। फ्रेश होने के बाद उसने सादा सा गर्म सूट निकाल कर पहना, ठंडे पानी से वुजू बनाया। आज उसे ठंड नहीं लग रही थी। जब अंदर की लावा धक रहे हों तो चमड़ी
تو چمڑی کو کہاں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کے آگے سجدے میں گر گئی۔ دل میں ایک خلش تھی، اسے بہت اس تھی اپنے محرم رشتے سے اسے بہت آس تھی اپنے محرم رشتے سے۔ اس نے گھر والوں کی بے اتباعی اتنے سال برداشت کی، پھر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی، مگر آج اپنے شوہر کی پہلے ہی دن کی بے اتباعی اسے گہرے دکھ میں مبتلا کر گئی۔ مگر یہ وقت اس کا اور اس کے رب کے درمیان کا تھا، جس میں دنیا کا کوئی بھی فرد شامل نہیں ہوتا تھا۔ حسیب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ناز عالم جو سونے جا رہی تھی، حسیب کو قدرت مختلف حلیے میں کہیں اور جاتے دیکھ چونک کر بولی۔ حسیب کے جاتے قدم رکے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اپنی ماں کی پکار کبھی انسنی نہیں کی تھی۔ وہ ماما مجھے ضروری کام ہے بیٹا، مگر انامیتا ماما میری بات ہو گئی ہے، آپ جا کر آرام کریں، اوکے بائے۔ ناز عالم کی نظروں نے حسیب کی اوجھل ہو جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ پہلے انہیں خیال آیا وہ انامیتا کے پاس چلی جائے، مگر پھر خود ہی اپنا خیال جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فجر کے بعد کا وقت، جب آسمان خود پر ہر سو سرمئی اور نارنجی چادر اوڑھے ہوئے تھا، سردیوں کے بعد سے چھائی ہلکی ہلکی دھند اور سورج کے طلوع ہونے کا خوبصورت مناظر۔ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے حسیب اور عائشہ اس مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حسیب، یہ وقت، یہ مناظر، سب کچھ کتنا اچھا ہے نا؟ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تم واپس جاؤ۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کل کا دن میں انگاروں پر کیسے گزارا۔ عائشہ لک ایٹ می۔ حسیب جمپ لگا کر گاڑی سے اترا۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ میں نے تم سے اجازت لی تھی اس شادی کی، تو پھر ایسا ری ایکٹ کیوں؟ ہاں تو میں کیا کرتی حسیب؟ اگر اجازت نہ دیتی تو تم مجھے چھوڑ دیتے۔ کیا میں نہیں جانتی تم آنٹی کی کوئی بات نہیں ٹالتے؟ گڑگڑاتے ہوئے اس نے معذرت دی۔ ہاں تو اب اجازت دے دی ہوگی شادی، تو پھر رات کو مجھے دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ سب چھوڑ کر میں تمہارے پاس آؤں؟ تمہیں برا لگا حسیب اپنی بیوی کو چھوڑ کر میرے پاس آنے پر؟ تو کیوں آئے تھے پھر؟ عائشہ کام ڈاؤن، مجھے تمہاری فکر ہے اس لیے میں آیا تھا تمہارے پاس۔ دوسرا یہ کہ وہ میری بیوی ہے جس سے شادی میں نے تمہاری اجازت کے ساتھ کی ہے۔ بلیو می، اگر تم مجھے فورس نہ کرتی تو میں ماما کو منا ہی لیتا، مگر اس طرح میں اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اس کے بھی خواب ہوں گے۔ اوہ، تو بہت ترس آ رہا ہے اپنی بیوی پر؟ تو جاؤ نا حسیب، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اس کے گھٹنے کے ساتھ جا کر لگو، اور کل کو جب وہ تمہیں اجازت نہیں دے گی دوسری شادی کرنے کی تو تم سر ہلاتے ادھر اور کہنا عائشہ میری بیوی نے مجھے اجازت نہیں دی، اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ سے ہٹتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حسیب عالم اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتا، چاہے وہ کل مجھے اجازت نہ دے۔ اوہ، تمہیں ڈراپ کر دوں؟ اور گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، رات کو تمہیں بلا کر میں نے تمہاری بیوی کے اوقات اس پر عیاں کر دی ہے۔ حسیب عالم کی بیوی بے شک وہ بن گئی ہے، مگر اس کے دل میں ہمیشہ سے عائشہ اعظم ہی رہے گی۔ حسیب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ مغرور لہجے میں بولی۔ حسیب نے سر جھٹکا، وہ بہت عجیب حرکتیں کر رہی تھی، روز والی عائشہ سے بالکل قدرت مختلف یا قدرت عجیب، مگر اس کی باتوں سے حسیب کے اندر گلٹ پیدا ہوا تھا۔ تقریباً صبح 7 بجے کے قریب وہ گھر آیا تھا۔ فریش ہو کر وہ بیڈ روم میں آیا، بیڈ کے ایک کونے میں قدرت سمٹ کر لیٹا وہ وجود سردی کے باعث کانپ رہا تھا۔ اتنی سردی کے باوجود بلینکٹ نہ لیے ہونے پر حسیب حیران، پھر خود ہی آگے بڑھا، کمبل گٹھری بنے وجود پر دیا، مگر وہ ٹھٹک گیا۔ آنکھوں کے پپوٹے سرخ ہوئے تھے، ناک اور گال بھی سرخی مائل تھے، سنہری رنگت چمک رہی تھی، آنکھوں کے اوپر میک اپ کا مٹا مٹا سا گلیٹر لگا ہی چھب میں تھا۔ انامیتا کے ہلنے پر وہ فوراً سائڈ پر ہٹا۔ وہ خاصی کچی نیند کی مالک لگی تھی۔ نیند میں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی برف کے خانے میں پھنس گئی ہو۔ جسم الگ کانپ رہا تھا جب یکدم کسی گرم سی چیز نے اس کے گرد حالس بنایا۔ اسے اپنی رگوں میں سکون سراحت کرتا محسوس ہوا۔ یکدم دماغ بیدار ہوا، مندی مندی آنکھیں کھولی، خود کو غیر شناسا سے کمرے میں پا کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے ہی تو وہ موجود تھا، اس کا شوہر، جو رات کا
गया जाने का वापस आया था। गैब दिमागी से खुद के गिर्द लिपटे दुपट्टे को फरमोश किए इधर उधर अपनी चादर तलाश करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उसे यहाँ वहाँ कुछ तलाश करते देख हसीब ने ही पहल की। वो मैं, वालेकुम अस्सलाम। अनमिता कंफ्यूज हुई। आप ठीक हैं? हसीब ने इस्तफार किया। क्यों? मेरा मतलब जी, मैं आपसे माजरत खा हूँ, रात को मुझे तन्हाई ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। आई एम रियली इट्स ओके। अनमिता झिझकते हुए फ्रेश होने चली गई। दिल तोड़ना आता नहीं मुझे, ना अपनों और गैरों में फ़र्क रखती हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में बाज रखते हूँ मैं, फ़िकत इन अपनों से डरती हूँ। हसीब और अनमिता साथ ही ड्राइंग हॉल में आए थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? नाज़ आलम ने अनमिता को गले लगाकर पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आंटी, माशाल्लाह चाँद लग रहे हैं हमारी बेटी। इनके इस अंदाज पर अनमिता की आंखें भीगी, उसे अपने घर वाले याद आए। आओ बच्चों हमारे साथ नाश्ता करो। नसीमा जल्दी लगाए नाश्ता, बहू बेगम का पहला नाश्ता है हमारे घर में। नाश्ता तो क्या उसके माँ बाप नहीं आएंगे? उसने दिल में सोचा। नाश्ता करते वक्त भी उसका ध्यान बाहर की तरफ ही था कि शायद अभी आ जाए। क्या हुआ बच्चे, आप सही से नाश्ता नहीं कर रही हैं क्या? पसंद नहीं आया? उसे प्लेट पर फजूल में चम्मच घुमाते देखकर पूछा। हसीब ने भी नाश्ते से हाथ रोककर उसे देखा। उसे लगा कि शायद वो उसके रात वाले रवैये के बासित ऐसा कर रही है। नहीं वो आंटी, मैं खा रही हूँ बस। हसीब के फ़ोन के रिंग होने पर अनमिता ने चौंक कर हसीब को देखा। शायद उसके घर वाले आए होंगे। एक्सक्यूज मी, वो माजरत करता नाश्ते की टेबल से उठा। नाज आलम बारीक बीनी से अनमिता के तासर भांप रही थी। अनमिता बच्चे, आप हमें बता सकती हैं? आंटी, मेरे घर से अभी तक कोई नहीं आया। मतलब मामा आपी वगैरह। झिझकते हुए आखिर उसने पूछ ही लिया। नाज आलम ने सुकून का सांस लिया। नहीं तो वो अभी हसीब के इस तरह रात को चले जाने के पीछे की वजह पूछ लेती तो इन्हें दिक्कत होती। अरे हाँ, वो ही रस्म की बात कर रही हैं ना आप? अब क्या हम इन्हीं बहू को नाश्ता भी नहीं करवा सकते? आखिर क्या कमी है? हमने मना कर दिया था अस्मा को। जी आंटी। जबरन मुस्कुराई। उसे इन सब रस्मों का कितना शौक था ना। उसकी शादी में हर छोटी बड़ी रस्म हो, पहले आना फाना शादी हो गई और अब खैर न लाते नाश्ता तो वैसे ही आ जाते मिलने। अगर मिस कर रहे हैं तो हम बुला लेते हैं आपके घर वालों को। नहीं आंटी, ज़रूरत नहीं, अभी पार्लर चले जाना है, रात को वैसे भी मुलाकात हो ही जाएगी। हाँ, पार्लर से याद आया, आपका ड्रेस मैंने कमरे में रखवा दिया है। जाने से पहले ज्वेलरी हमसे लेती जाइएगा। और बहुत एहतियात से, हमारी ख़ानदानी ज़ेवरात हैं, इसलिए हम मुलाजमा के हाथ नहीं भिजवा रहे। जी आंटी। नाश्ता कर लें, हसीब आपको छोड़ देंगे पार्लर। हसीब के वापस टेबल पर आ जाने के बाद नाज आलम ने हतमा अमेज लहजे में कहा। अनमिता ने एक चौर नजर हसीब पर डाली जो नाश्ता करने में महव था। वलीमे का फंक्शन लग्जरी ग्रेड होटल में हुआ था। अनमिता बेइंतहा हसीन लग रही थी। वाइट वॉलेट ब्लैक एंड ग्रे मैक्सी खूबसूरत से हेयर स्टाइल पर सेट किया खूबसूरत डायमंड क्राउन, साथ इस हैवी वेट ने चार चांद लगाए। सिद्रा की नजर तो इसके सेट पर ही मस्कर रह गई। अनमिता, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। मेकअप और काफ़ी अच्छा है, कम्प्लेक्शन अच्छा कवर हुआ है। अनमिता के पास बैठी हल्की आवाज़ में बात कर रही थी, मगर इनकी आवाज़ हसीब आसानी से सुन पा रहा था। वाह, और ये सेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या हसीब ने दिया है? इस सेट पर नजरें मकसद किए बोली। नहीं आपी, वो ये आंटी ने दिया है मुझे। वाओ, इट्स लुक डैम, मुझे पर कितना सूट करेगा। बाय द वे, क्या मुंह दिखाई मिली? क्या दिया हसीब ने तुम्हें? आपी, वो डायमंड रिंग दी थी। क्या देखनी है? हसीब ने अपना मुंह सिद्रा की तरफ मोड़कर कहा। नहीं, वो वैसे ही मैं पूछ रही थी। वेट अनमिता, मैं मम्मा को भेजती हूँ। वलीमे के फंक्शन में हसीब के बिजनेस फ्रेंड्स के अलावा ईशा भी मौजूद थी। रेड वेस्टर्न मैक्सी में बोल्ड मेकअप, वो अपने अपर सोसाइटी के होने का सबूत दे रही थी। हाय हसीब, हाय। उसने अनमिता के आगे हाथ बढ़ाया। अनमिता हसीब। उसके इतने हक से अनमिता हसीब कहने पर ईशा सुलग उठी थी। ओह नाइस टू मीट यू। सॉरी, मैं कल आ नहीं सकी, मेरी तबीयत नासाज थी। रात को आया था हसीब मेरे पास। अच्छा, मैं चलती हूँ, हसीब की मॉम से भी मिलना है। वो अपना काम करके जा चुकी थी। एक पल को तो अनमिता के तासर भी बदले थे, मगर वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। वलीमे का फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। सब अच्छे से गुजर गया। उसकी शादी से
مکالمے والی رسم بھی اسکپ کر دی گئی تھی۔ اب آج اس نے حسیب کے ساتھ جانا تھا۔ صبح اس کے گھر والے اسے لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ ڈریسنگ روم میں بیٹھی اپنی جولی اتار رہی تھی جب حسیب ادھر آیا۔ نمیتا ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ آپ کی منہ دکھائی والی رنگ کہاں ہے؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ میں نے بیڈ روم کے سائڈ ٹیبل میں رکھی تھی، میں آیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ حسیب نے اپنی کشیدہ ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ میں جانتا ہوں وہ کوئی طریقہ نہیں تھا آپ کو پہلا تحفہ دینے کا، اس لیے معذرت، کیا میں پہنا دوں؟ انمیتا نے خود کو ہواؤں میں محسوس کیا اور اپنا مومی حنائی ہاتھ اس کی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ تمنا دو دلوں کی ایک ہی معلوم ہوتی ہے، اب ان کی ہر خوشی اپنی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ کی چال چل جاتا ہے دیوانہ محبت یا بظاہر وہ بھی ایک دیوانی معلوم ہوتی ہے۔